Cell of AMP, Association of Muslim Professionals. Welcome everyone to the Employability Training Program organized by AMP for Integral University, Lucknow. I have with me the faculty members as well as the HOD from Integral University. I have Mr. Mahmood Alam. I have Ms. Shara Khurshid. And I have our speaker for today, Mr. Salman Zia. So there are students who are joining for this online session. So by the time they join, I would now start the session with a small prayer. Pridat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم. I would now present to you the PowerPoint presentation which has information about AMP. Introducing Association of Muslim Professionals, AMP. Association of Muslim Professionals, or AMP, is a not-for-profit organization, and among many other activities, we endeavor to promote employment and knowledge in our society. These are few of our flagship projects: skill development lectures, which we conduct in schools, and job fairs. AMP organizes job fairs all across India, and we also organize job drives. We organize employability training programs. We do it online. Right now we're doing it due to the current pandemic. We are doing it online for the general public as well as for the colleges. So we have a department which is Employment Assistance Cell. In EAC, we are striving for 3 E's, which is education, employment, and empowerment. So keeping in mind AMP's core objective of supporting the underprivileged, promoting education, and creating economic empowerment. These are the few activities which AMP conducts: job fairs, job drives, employability training programs in colleges, and we also do tie-ups with the skill training companies. So job fair, AMP organizes all across India, and we have successfully organized 42 plus job fairs till date. So every job fair we have participation of 50 plus companies and 2000 plus candidates. AMP has organized job fairs in the past in collaboration with Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh State Minority Finance Corporation, and other reputed NGOs. And AMP invites corporates like TCS, Asian Paints, Reliance Group, Cafe Coffee Day, McDonald's, Team Lease, Tech Mahindra, and other reputed corporates in our job fairs. These are a few snapshots of our past on-ground job fairs. So job drives are also organized by AMP, but job drives are on a smaller scale, and these are in the rural areas of India where there are less opportunities for the candidates. So we invite around 2 to 3 corporates in these job drives. These are a few snapshots of our past job drives. Employability training programs. So employability training program we conduct in colleges. So it is for assisting the job seekers to find the right job at the right place at the right time.
Our ETP trainers are seasoned professionals who have in-depth understanding of employability training and are committed to investing their valuable time, resources, and knowledge in grooming the candidates. So we team up with colleges in different cities and conduct ETPs on a regular basis. These are a few snapshots of the classroom training program for the employability. So we also do tie-ups with the skill training companies like Tata Trust, Whirlpool, Tech Mahindra Foundation. So we have arranged skill training melas in the past. So we have mobilized candidates for courses like AC technician, mobile repairing technician, solar engineering. This is the snapshot of our intervention into skill training. So our achievements till now, we have done 42 plus on-ground job fairs. Apart from that, we have done 9 online job fairs, 270 plus job drives, and 4 online job drives, 200 plus employability training programs in colleges, and 14 online employability training programs, which was during this pandemic. So the initiatives of AMP, which is newly launched, indiazakat.com and the indiamentors.com. Indiazakat.com is India's first zakat crowdfunding platform floated by AMP with a view to bring the zakat seekers and zakat givers on a unified platform. Its objective is to undertake its operations purely with the intent of bringing socio-economic transformation in the lives of the people without seeking to generate any commercial surplus. And we also have launched the indiamentors.com. The indiamentors.com strives for the development of a vibrant and progressive student community in India. To achieve this, AFB tries to reach out to every needy student of India throughout the medium of education, career guidance, and employment assistance. The IndiaMentors.com envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. Thank you. I would now introduce our speaker for today, Mr. Salman Zia. He is a corporate trainer by profession. He's experienced instructor and he has 16 years of work experience and loves working with students and professionals and motivating them. He's competent in creating a learning environment that is interactive, relaxed, and enjoyable with a bundle of group activities. He takes regular sessions on soft skills, communication skills, corporate professional, and he teaches BE and MBA students. He takes training sessions. He's taken training sessions in SRIT Jabalpur mental health and on mental health and stress management. He has worked with many corporates and institutions as a freelance trainer on multi-dimensional training assignment through Hero Mindman and Indus teaching communication skills and soft skills to professionals and students. I would now request our speaker for today, Mr. Salman Zia. Sir, please carry on with the session. Right. Thank you. Thank you so much, San Bhai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And a very good afternoon to all. So, San Bhai, I believe I am audible and visible too. Yes, yes, sir. You are audible. Yeah, thank you. So, as the way we are going to talk about the exploring employment opportunities, so I would like to share some of the recent experiences. What is happening with us that in place of focusing over our strength, the students are majorly focusing on that the kind of a degree what they're having with, and they're looking to explore their job opportunities in that domain. Maximum and minimum time दोनों को हम थोड़ा सा segregate करेंगे यहाँ के ऊपर. What is happening, that for example, a recent example of the college students, they have completed their engineering and they are about to complete their engineering in next few months of time. So now we have got campuses going on, like for IT and for non-IT companies. For talking about the IT companies, so we have Cognizant, TCS, Zenstar, and all big names are there. And talking about like the non-IT companies, like could be Byju's, could be Vedantu, and could be like Zaro Education, and several things are there. To be very honest, these are there. The challenge is what that friends understand my point to be very. I want you to understand this very very clearly that
do not look for a job what you are looking for, but more importantly, do a little amount of self introspection process, find out your strength and your weaknesses, and work accordingly. Right? It means that if you have a strength, or that you can interact with people well, you are a good communicator, right? People appreciate your communication skills. लोग आपके interactions को, आपकी बातचीत को appreciate करते हैं, तारीफ करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपकी strength है, right? किसी इंसान में पेशेंस बहुत ज्यादा है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। किसी इंसान के बोलते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, किसी की राइटिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो एवरी इंडिविजुअल इज ब्लेस्ड विद अ काइंड ऑफ यूएसपी, अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर वो चीज हमारे पास में है, अगर वो यूएसपी को हम फाइंड आउट कर ले, वो स्ट्रेंथ अपनी फाइंड आउट कर ले, तो हो सकता है कि हमारे लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो उनका जो हमारे एक्सप्लोर करने का एरिया है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, recently there are few students those who were hired in a company called Zaro Education. So they called me and they asked me that, Salman sir, please tell me what should I do? Should I do become part of this? मैंने बोला प्रॉब्लम क्या हो रही है इसके अंदर, व्हाट्स द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? सर वो मैंने सीएस में, मैंने आईटी में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, उसके बाद जारो में जाना, वहाँ पे बीबीए वाले बच्चे भी हैं, बीकॉम वाले बच्चे भी हैं और एमबीए वाले बच्चे भी हैं, तो मतलब मैं बोला बेटा एक बात मुझको इतना बताइए कि चैलेंज प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि आप डिग्री के साथ में जॉब को आप एसोसिएट नहीं कर पा रहे हो, या आपकी स्ट्रेंथ के साथ में एसोसिएट नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग क्या कहेंगे, राइट? कि इंजीनियरिंग करने के बाद में हम दारू में आके बैठ गए, हम नॉन आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर नॉन आईटी में काम करना ही था तो भाई हमने इंजीनियरिंग में 4 साल और इतने पैसे वेस्ट क्यों किए हमने? तो दीज ऑल आर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट। आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th यू माइट हैव अ रॉन्ग डिसीजन, आप एक गलत फैसला कर सकते हो किसी फील्ड में जाने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, आई रिपीट माय वर्ड्स वंस अगेन, a very important statement that need to be taken care by you people very sincerely, that is, degree doesn't fetch you a job, आपकी स्किल्स आपको जॉब फेच कराती हैं। तो अगर एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं फिर बोलूंगा मैं आपसे, सॉफ्ट स्किल्स ही हमारे लिए जॉब्स का रिसोर्स बनती हैं, जरिया बनती हैं। अदरवाइज एक कॉलेज से एक वक्त में या पूरे स्टेट में लाखों एमबीए और लाखों इंजीनियर्स बाहर निकल के आते हैं। एक स्टेट से मेरे ख्याल से, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूं, तो मोर देन 1.5 लाख इंजीनियर्स और एमबीएस, दे डू कम आउट एंड दे स्टार्ट हिटिंग इन द मार्केट। जिनको पता नहीं होता, जिनको पता नहीं होता, जिनको किस फील्ड में जाना है, काम करना है, वो पता इसलिए नहीं होता कि बिकॉज हमने हमारी स्ट्रेंथ फाइंड आउट नहीं करी है। हमको नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली, एक काम कीजिएगा, सॉरी एक काम कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे अभी, आई रियली वांट टू हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज परफॉर्म अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी विद मी, वन स्मॉल टास्क आई एम गिविंग यू राइट नाउ। प्लीज हैव अ पीस ऑफ पेपर and a pen with you and draw a line in from the center. Piece of paper and pen and draw a line from the center, and towards your first side, write the heading, give a heading that I can. What all you think you can, please put a heading that I can, start writing down all things I can. And on the next side, please write down I can't, the thing which you think that you cannot. इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे बाद में, लेकिन इसको परफॉर्म जरूर करिएगा मुझसे इंटरेक्ट करते वक्त, सुनते वक्त। एक पेज पे लाइन ड्रॉ करके, एक साइड में आई कैन, दूसरे साइड में आई कांट, और उसके ऊपर जो भी आपकी लिस्ट बनती आ रही है इस प्रोसेस में अगले आधे घंटे घंटे के अंदर, उसको आप प्लीज मेंशन करते जाएं। आगे की बात मैं आपसे तब करूंगा जब ये लिस्ट आपकी बन जाएगी, और उसके बेसिस के ऊपर आप मुझे बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ बात हो रही है स्ट्रेंथ्स को लेकर के। अगर हमारी करेक्शन में, फॉर एग्जांपल, जिन बच्चों का जारो एजुकेशन में सिलेक्शन हुआ, मतलब क्लियर है कि उन्होंने पूरे कॉलेज के सारे बच्चों को बीट करने के बाद वो 3 से 4 बच्चे बाहर निकल के आए। वो 4 बच्चों की स्ट्रेंथ क्या थी अगर मैं आपसे पूछूं, तो उनकी स्ट्रेंथ थी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी कन्विंसिंग स्किल्स, अलॉन्ग विद दैट उनकी स्पॉन्टेनिटी एंड क्रिएटिविटी। तो ये कॉम्बिनेशन है 3-4 अलग अलग स्किल्स का, बिकॉज ऑफ विच दे वर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू। बिकॉज एचआर वहां पे क्या बोलता है, सेल दिस पेन, सेल दिस बुक, सेल दिस सब्जेक्ट टू मी। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका आपकी कन्विंसिंग स्किल्स, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी स्पॉन्टेनिटी, ये सब चीजें बाहर निकल के आती हैं। दैट इज हाउ हमारा सिलेक्शन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या किसी भी बैकग्राउंड से है, अगर उसको उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर जॉब्स मिल रही हैं, तो व्हाई वी आर लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू अ पर्टिकुलर जॉब और पर्टिकुलर सेक्टर और पर्टिकुलर डोमेन? अगर आपका इंटरेस्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
लेकिन अगर आप लोगों को जस्टिफाई करने में, अपनी डिग्री को जस्टिफाई करने के प्रोसेस में आप ऐसी जॉब्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, I am seriously sorry to say this is going to be a absolutely bad decision from your side. Let me quote you one real example of my life. During my childhood, I used to get a feedback from everyone, not from my parents, but everyone who knows me. Everybody, सलमान तू बहुत बोलता है, कम बोला कर, कम बोला कर, कम बोला कर। पूरी दुनिया को, मेरे मेरी जो आसपास की दुनिया थी, उन सबको मेरा बोलना मेरी बहुत बड़ी वीकनेस दिखाई पड़ती थी, बहुत बड़ी कमजोरी दिखाई पड़ती थी। हर कोई मुझे कम बोलने के लिए बोलता था। एंड फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे करियर में जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मेरा बोलना ही मेरी कमाई है। तो जो दुनिया की नजरों में मेरी वीकनेस थी, वो आज की तारीख में एक्चुअली में वो मेरी मेजर स्ट्रेंथ है। दैट इज माय यूएसपी। अगर मैं बोलूंगा नहीं, मेरी अर्निंग्स नहीं होंगी, मेरी कमाई नहीं होगी। तो मेरा बोलना, दैट इज दैट दिस इज व्हाट आई वाज ब्लेस्ड विद। ये मेरे पेरेंट्स को समझ में नहीं आई, मेरे एक्वेंटेंस को समझ में नहीं आई, मेरे फ्रेंड्स को समझ में नहीं आई, मेरे सिबलिंग्स, मेरे रिलेटिव, किसी को समझ में नहीं आई कि ये भी एक स्ट्रेंथ हो सकती है, राइट? लेकिन ये भी स्ट्रेंथ है, एग्जैक्टली स्ट्रेंथ है। ज्यादा बोलना, मैंने क्या किया उस ज्यादा बोलने के प्रोसेस में, जो स्टूपिड टॉक्स थे, जो स्टूपिड कंटेंट था, जो इरेलेवेंट कंटेंट था, उसको एलिमिनेट कर दिया। और क्या ऐड कर दिया? मीनिंगफुल टॉक्स ऐड करना स्टार्ट कर दी, रीडिंग करना स्टार्ट कर दी कि और कुछ नया नया सीखने को मुझे मिलेगा। ऑथर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आर्टिकल्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए, थोड़ा सा लोगों से सोशलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि लोगों की लाइफ की जर्नी देखूं, उनके पास क्या क्या लाइफ में देखा उन्होंने। मेरी ही जिंदगी ज्यादा पेनफुल है, दुनिया में और ज्यादा बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पेंडेमिक की बात की जाए, इस पेंडेमिक में आई बिलीव दैट अगर हमारे पास में एक भी नौकरी बची हुई है, कम सैलरी पे भी काम कर रहे हैं, तो वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव अ जॉब विद अस, राइट? कई लोग सड़कों पे आ चुके हैं। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थिंग, चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी किसी में होगा कि उसको डेटा में बड़ा मजा आता होगा, उसको लाइक इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये आपकी स्ट्रेंथ होगी। तो जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं, जितनी भी स्किल्स हैं, उनके बेस पे मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है। अब एक मिसमैच देखिएगा, एक ऐसे इंसान को जिसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का इंसान है, अगर उसको आप एक आईटी की जॉब पे बिठा दिए, जहां पे उसको 8 से 9 घंटे बैठ करके सिर्फ सिस्टम पे काम करना है, कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो दिस गाय ही विल फील बैड अबाउट आफ्टर 6 मंथ, ही विल नॉट बी एबल टू डू वेल, बिकॉज वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट ही नहीं है। अगर हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था अनजाने में, लोगों के कहने पे इन्फ्लुएंस होकर के, तो नाउ वी हैव अ राइट टाइम टू डिसाइड आवर। ठीक है? तो पहली बात तो ये कि अपनी जॉब को प्लीज अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से फाइंड आउट करें, ना कि अपनी डिग्री के हिसाब से। डिग्री जॉब की गारंटी नहीं होती है, डिग्री सिर्फ बताती है कि आप एलिजिबल हो, दैट्स इट। चलिए, अब नेक्स्ट पे आते हैं, जॉब फाइंडिंग एक्सप्लोर करने के तरीके की बात करते हैं कि हाउ कैन बी एक्सप्लोर मोर जॉब पॉसिबिलिटी। बाकी तो पता होगा आपको कि जब हम बात करते हैं, नौकरी.com है, monster.com है, वहां पे जाकर के अपनी प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल को लगातार अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, राइट? ये चीज मालूम है आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहता हूं मैं अपने एंड के थ्रू, अपने थ्रू, वो ये है कि प्लीज आपके रिज्यूम पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। आपका रिज्यूम जो है वो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, और कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप कैंपस के बाहर, कैंपस में जाते हैं तब तो अलग बात होती है, कैंपस के बाहर जब आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो आपका ये पहला डॉक्यूमेंट है, जो पीस ऑफ पेपर है, इसको रिज्यूम कहते हैं। इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग, इसका प्रॉपर डेटा का होना, चीजों का ऑर्गेनाइज होना, चीजों का प्रोसेस के अंदर आना, चीजों को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होना, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसको लगता है कि इसमें स्ट्रेंथ या हॉबीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके हॉबीज और इंटरेस्ट का आपके रिज्यूम पे होना, इट इज अ मैंडेट, वो कंपलसरी है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्किंग कल्चर को आपके रिज्यूम पे लिखी हुई आपकी हॉबी और स्ट्रेंथ से भी देखता है कि क्या ऐसा है, पॉसिबल है कि आपका हॉबी या आपकी इंटरेस्ट आपकी अर्निंग का जरिया बन जाए। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो हॉबीज और इंटरेस्ट का भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट काम क्या बताऊंगा मैं आपको, जब भी हम किसी भी जॉब को देखते हैं, हमने नौकरी.com पे प्रोफाइल बनाई, वहां पे अपलोड कर रहे हैं, बेटा वहां से पॉसिबल नहीं चीजें आ पाए। हमने लिंक्डइन पे गए, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के डाल दी, हमने मान ली, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ के ऊपर कंटिन्यूटी का होना मेंटेन है। लिंक्डइन में आप जाएं, लिंक्डइन पे जाने के बाद में अपनी इंटरेस्ट की फील्ड के, अपने डोमेन के आप कंटेंट शेयर करें। कंटेंट आप ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं तो कंटेंट को किसी और जगह से पिक करें, गूगल से पिक करें, साइट से पिक करें, नीचे कर्सी देके कंटेंट को शेयर करें। आपके डोमेन के लोगों के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनसे अपने कनेक्शंस बनाएं,
उनके इवेंट्स पे, उनके जो भी चीजें वो शेयर करते हैं उस पे कमेंट्स डालें, उसको मेंशन करें चीजों को। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस जो है आपके इन्वॉल्वमेंट का, ये लगातार रहना चाहिए। इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, इसको आप होल्ड नहीं कर सकते, राइट? तो ये जो प्रोसेस है लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने का, कनेक्ट रहने का, आप फेसबुक पे मत जाइए, आई डोंट माइंड। आप इंस्टा पे मत जाइए, आई डोंट माइंड। लिंक्डइन पे जाना मैं बोलूंगा, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप 10 बार फेसबुक पे जाते हो तो 25 बार आप लिंक्डइन पे जाइए। दैट शुड बी द रेशियो। यू मस्ट लुक एक्टिव, ताकि आपके नेटवर्क के लोग बार बार आपको देख पाएंगे, राइट? और एक रिसर्च कहती है कि हर दिन लिंक्डइन जो है वो करीबन 3 लोगों को जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इट्स अ रिसर्च, राइट? कोई बड़ी बात नहीं है कि उन 3 लोगों में आपका भी नाम आ जाए। इफ यू यूज द रिसोर्सेज अवेलेबल, राइट, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास में, अगर हम उनको सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए फ्रूटफुल बन जाएंगे। फेसबुक हमें कुछ भी नहीं देगा, इंस्टा हमें कुछ नहीं देगा, लेकिन लिंक्डइन हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे सकता है। हो सकता है उसके थ्रू हमको जॉब भी लग जाए। तो ये जो प्रोसेस एक्सप्लोर करने का। सेकेंड थिंग, और आई सीरियसली वॉन्ट यू पीपल टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट जोन के अंदर रह करके अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहते हो, आप अगर, तो मैं आपको सच में कहूंगा कि आप चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि जितना मुझे पता है मेरे बारे में उतने ही दायरे में खेलना, उसके बाद में कोई चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना, किसी भी तरह की चीजों में नए नए एक्सपीरियंसेस से दूर भागना, राइट? अपने कंफर्ट जोन में प्ले करना। तो दिस इज नॉट गोइंग टू फेच यू एनी गुड स्किल्स एंड एनीथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कंफर्ट जोन के बाहर निकल के आना है। फॉर एग्जाम्पल करना क्या है आपको नाउ? जब हम किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाएंगे, जाने के बाद में कंपनी के जो नंबर दिए गए, मेंशन किए गए नंबर, वहां पे कॉल लगाएंगे। कॉल हमारी रिसेप्शन पे एंड होगी। रिसेप्शन से हम एचआर डिपार्टमेंट में कनेक्शन की रिक्वेस्ट करेंगे, वहां से हम एचआर डिपार्टमेंट में कॉल पहुंचेगी हमारी, वहां एचआर से इंटरेक्ट करेंगे। अब ये हमारा जो इंटरेक्शन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये इंटरेक्शन जो होगा ये क्रिस्पी होना चाहिए, ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में होना चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होना चाहिए। क्योंकि ये जो इंटरेक्शन होगा इस बेस के ऊपर ही एचआर आपके रिज्यूम को अपनी ईमेल आईडी से पुल अप करेगा, जो कि वो आपसे मांगने वाले हैं। जब उनसे कहेंगे कि मैडम कैन आई हैव योर ईमेल आईडी टू शेयर माय रिज्यूमे विद यू, तो मेक श्योर ये जो इंटरेक्शन होगा, ये बात होगी आपकी, ये बात ही एचआर को इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, और उसको एक माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप करेगी, यार बंदे से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, लेट मी सी दैट व्हाट ऑल ही हैज बीन थ्रू, क्या क्या उन्होंने कंप्लीट किया उन्होंने अपना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर वन। नंबर टू, जब हम किसी भी साइट्स की जगह पे जाते हैं, आप कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके पास रिज्यूम का बहुत सारा डेटा होता है, राइट? दे हैव अ डेटा। तो हर रिज्यूम को फिल्टर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अब वो क्या करते हैं, उनके पास में सर्च इंजन है, वो कीवर्ड्स डालते हैं। कीवर्ड्स में जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो कीवर्ड्स को सर्च मारते हैं, और वो सर्चिंग के बेसिस के ऊपर रिज्यूम्स पुल अप होके आते हैं। ज्यादा आते हैं तो वो एक आध स्पेसिफिक कीवर्ड और ऐड कर देते हैं रिज्यूम को मिनिमाइज करने के, ताकि क्वांटिटी जो मिनिमाइज आ जाए, और जो रिक्वायर्ड प्रोफाइल्स हैं वो हमको मिल जाए, मैक्सिमम प्रोफाइल हमको मिल जाए हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको करना क्या है इसके अंदर। अगर आपको ये लगता है कि आपको 10 चीजों के बारे में आपके पास में एड ऑन सर्टिफिकेशन होने चाहिए, कि आपके पास हर चीज का सर्टिफिकेशन हो, तो अब आप रिज्यूम पे डालेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके पास में सोर्स अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाइए, आप गूगल के ऊपर जाइए, किसी भी चीज के बारे में, सॉरी, किसी भी चीज के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, उस बेसिक इंफॉर्मेशन को गेन करिए, अपने आप को स्किल्ड करिए, अपने आप को स्किल अप करिए, राइट? इतना स्किल अप करिए कि ताकि जब इंटरव्यू के दरमियान में आप जब कॉन्फिडेंटली अपने रिज्यूम के ऊपर किसी भी स्किल को ऐड करें, तो वो स्किल को आप वहां के ऊपर बेसिक उसके बारे में बता पाए। क्योंकि मैंने बोला आपसे कि क्या कहा शुरुआत में, कि किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन और डिग्री आपके पोटेंशियल को नहीं दर्शाती है। और कैंपस प्लेसमेंट में कई बार ऐसा भी देखा गया है, जिनके 8 पॉइंटर्स अबव परसेंटेज बनते हैं, वो कैंपस में खाली हाथ रह जाते हैं, और जिनके 6 पॉइंटर्स, 6.5, 7 पॉइंटर्स, जो कि एवरेज स्टूडेंट हैं, सबसे पहले कैंपस में जॉब उनकी लग जाती है। क्यों लग जाती है उनकी जॉब? क्योंकि उनके रिज्यूम के ऊपर वैरायटी होती है। वो स्पोर्ट्स में भी होते हैं, वो गेम्स में भी होते हैं, उन्होंने अचीवमेंट भी हासिल किए होते हैं, उनके इंटरेस्ट भी होते हैं, उनके हॉबीज भी होते हैं। तो उनके रिज्यूम के ऊपर उनके सब्जेक्ट के डोमेन के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बताती हैं कि यार ये बंदा जो है बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत टैलेंटेड है। तो ऐसी एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो कि उसमें उसको हम कंसिडर करते हैं हमारे इंटरेक्शंस के अंदर।
तो रिज्यूम के ऊपर जब आप अपनी स्किल्स को ऐड करना स्टार्ट करिए तो मेक श्योर ये जो वैल्यू एडिशंस हैं इनमें अगर आपको लगता है कि डिग्री कंपलसरी है तो आई एम सॉरी, सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप चीजों को रीड करके थॉरोली अंडरस्टैंड करके जस्टिफाई कर सकते हैं तो ठीक है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखी जाएंगी या आपको पता है कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है। जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करने के लिए जाएंगे तो आपको इस थ्योरी को ही प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सेम चीज अप्लाइज, आप ऑनलाइन कुछ भी सीखते हैं आप अगर तो उसको भी आप कनेक्ट करेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। यू शुड नो एंड यू मस्ट नो द वेरी बेसिक ऑफ समथिंग। दिस इज द की इंग्रेडिएंट, द की रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर हम लगातार एक्सप्लोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम चीजों को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं और कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो एक्सप्लोर करने के लिए मैंने बताया कि हमारे पास में लिंक्डइन है, हम कनेक्शंस के थ्रू काम कर सकते हैं, हम वेबसाइट के थ्रू हम कंपनी के एचआर तक पहुंच सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट करके अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम हमारे रिज्यूम्स के ऊपर वैल्यू एडिशन में हम चीजें को इनपुट कर सकते हैं ताकि जब कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करें तो हमारे नाम आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाए। लेकिन फिर भी बात करूंगा मैं आपसे कि रिज्यूम का फॉर्मेट बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा होना चाहिए। मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन रिज्यूम पे काम नहीं करते। अंडरलाइंस खाली हेडिंग में आना चाहिए, बाकी अंडरलाइंस काम नहीं करते। बुलेट्स जो बनाते हैं वो सब एक तरह के होने चाहिए, मल्टीपल तरह के बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं करते। रिज्यूम के ऊपर किसी भी तरह की पिक्चर्स का, इमेजेस का इस्तेमाल नहीं करते, राइट। तो ये कुछ रिज्यूम्स की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेंगी ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या है एग्जैक्टली। just give me a moment. Right. So, these are the area of concern, जहाँ के ऊपर हमको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम इन चीजों पे पूरी तरीके से फोकस करते हुए मूव ऑन करें। हमारा रिज्यूम, हमारे जो वर्ड का जो इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है हमारे, इस पे फोकस करेंगे। अब कॉलेज कैंपस सबके पास में आता ही है। अब हमारे पास में क्या हो गया है, वर्चुअल वाली बात हो गई है। हमारे जो कैंपस भी होते हैं वो इंटरव्यू 1-to-1 नहीं हो रहे हमारे, वो भी इसके ऊपर हो रहा है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे हो रहे हैं। कोई गूगल मीट का इस्तेमाल कर रहा है, कोई जूम का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ के ऊपर बेसिक एटिकेट्स काम आएंगे आपके पास। बेसिक एटिकेट्स कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल, जब हम कहीं पर भी अपना इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं तो मेक श्योर कि हम उस जगह को पहले से अपने लिए रिजर्व करें जहाँ पे हमारे पास सिग्नल की स्ट्रेंथ बेहतर आती हो, जहाँ का एम्बियंस बहुत प्रॉपर हो। उसके बाद में हमारा अपनी जो खुद की जो पर्सनल ग्रूमिंग है, दैट नीड टू बी वेरी वेरी परफेक्ट। अलोंग विद दैट हमारे जो बेसिक एटिकेट्स की बात करेंगे हम अगर, तो जो बेसिक एटिकेट शुरुआत करने के लिए जो हमारे जो पीछे का बैग जो प्लेस हम चुने अपने इंटरव्यू के लिए, डिस्कशंस के लिए, बहुत ज्यादा नॉइजी ना हो, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज का आना भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, राइट। फिर बात आती है लाइट का इम्पैक्ट कैसा हो कि आपके फेस पे कॉम्प्लेक्शन डार्क या लाइट। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिनको हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा while giving your that Zoom interviews or Skype interviews, right? That the place is going to be very very important and the lighting is also going to play a very important role. क्योंकि होता क्या है ना कि आपका सारा इंटरेक्शन तो अच्छा हो रहा है एचआर के साथ में, लेकिन कुछ ऐसा है जो एचआर को बहुत इरिटेट कर रहा है। तो वो जो इरिटेशन जो कन्वे हो रहा है ना एचआर के पास में, वो उस इरिटेशन का जो इम्पैक्ट है वो शायद आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन पे भी आ सकता है, राइट। वन मोर एडवाइस, रट्टाफिकेशन पे मत जाइएगा। रट्टाफिकेशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी आपने गूगल की साइट के ऊपर गए, आपने कुछ क्वेश्चन वगैरह पढ़े, आपने आपने अपने फैकल्टीज से कंसल्ट किया, अपने मेंटर से बात करी, कुछ सवालों के जवाब निकाल लिया, आपने जवाब निकालने के बाद में आपने उनको मेमोराइज कर लिया और आपने रट लिया आपने उनको। बट देयर कुड बी अ बिग चैलेंज, कि जब आप इंटरव्यू में जाए, आप इंटरेक्शन स्टार्ट हो आपका, हो सकता है वहां पे आपसे एक भी वो सवाल ना पूछा जाए जो आपने मेमोराइज किया हुआ है। इसको हम कहते हैं कि प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट। जब हम प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट में जाते हैं, कुछ नई चीज सामने होती है हमारे, तो हमको उसमें उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो टाइम जो होता है हमारे कॉन्फिडेंस को शटर करने के लिए हमारे हमारे वॉइस की टोन एकदम से हम सुन हो जाएंगे कि क्या पूछ लिया, मे बी वी मे स्टार्ट लाइक दिस, हमारी टोन नीचे हो जाएगी, तो वो कॉन्फिडेंस चला जाएगा हमारा। एक बार आपने वहां से अपना कमांड खोया, दोबारा वापस आने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। Ahsan bhai, now I would like to go with the skills right now which we have discussed. Yes, I will be sharing right now. Yeah, please sir, thank you. So now here I am going to talk about the skills. A PPT will be shared with you people. This PPT will talk about the 10
इम्पोर्टेंट स्किल्स जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है कि ये वो स्किल्स हैं जिनका हर हाल में आपके अंदर होना कंपलसरी है। ये वो स्किल्स हैं जो आपको जॉब रेडी बनाएंगे, आपको प्रोफेशनल बनाएंगे। ये वो स्किल्स हैं जो कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैं आपसे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूँ, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दौर है, ये जो दुनिया है, ये लगातार बदल रही है, वर्किंग कल्चर बदल रहा है, ये आपने भी देखा होगा कि अगर मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो हमने जहां पर शुरुआत करी थी चीजों को लेकर के, जो हम 2019 में मामले थे वो 2020 में बिल्कुल भी नहीं हुए। 2019 में जो प्लानिंग की थी वो 2020 में एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, बिकॉज जो वर्किंग प्लेटफॉर्म बदल गया है, अब सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो नाउ वी आर हैविंग द ऑनलाइन प्रोसेस। तो ये जो वर्ल्ड बदल रहा है, ये जो दुनिया बदल रही है, दुनिया के साथ साथ हमारा बदलना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। So what does it say? That the world is constantly changing. The World Economic Forum shows which soft skills are required in the future. Change requirements require personal development. The world is constantly changing. So the requirement of personal development very very important. अब हमारी जो आज की थीम का जो मेन एरिया है कि सॉफ्ट स्किल्स जो है हमारे लिए हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज में कैसे हमको हेल्प कर सकता है, ये वो सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट नाउ। This also changed the skills that are required to be successful. The World Economic Forum has defined 10 soft skills for 2020 that will be essential for the jobs of the future. ये वो skills हैं जो आपके jobs of the future के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली हैं। ये बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो डेटा है ये पुराना है, राइट, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन आने के बाद में ये जो 10 स्किल्स हैं इनमें कम से कम 7 से 8 तो अपने प्लेस पे रहेंगी रहेंगी, लेकिन जो 2-3 स्किल्स हैं वो आने वाले वक्त में चेंज हो जाएंगी। तो ये डेटा जो है इसमें से 10 में से 7 से 8 तो हमको दोबारा मिलेगा ही मिलेगा इसमें हमको, लेकिन एज पर द करंट चेंजेस वी एक्सपेक्ट दैट देयर 2 to 3 थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज। इसमें चेंज कौन सा आ सकता है कि जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें उस टेक्नोलॉजी के बारे में हमको सारे कमांड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम यूजिंग दैट जूम एप्लीकेशन, तो जूम टेक्निकल जो एप्लीकेशन है मुझको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, ताकि अगर मुझसे कोई भी एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा गया तो मैं टेक्निकली साउंड होना चाहिए। भला भले मैं एमबीए हूँ, मैं बीबीए हूँ, मैं बीकॉम हूँ, नोबडी विल लिसन टू दैट एक्सक्यूज। तो अपनी लाइफ में हम एक्सक्यूजेस पे रहना छोड़ दें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर आना स्टार्ट कर दें। भाई प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ना अभी अभी ये स्किल्स कौन कौन सी हैं? तो पहली स्किल जहाँ पे आप देख रहे हैं ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं इसको हम। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन विद अदर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, सर्विस ओरिएंटेशन, नेगोशिएशन स्किल्स, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। हम बिल्कुल इनके बारे में डीप में बात करेंगे, आपसे बिल्कुल समझाएंगे आपको कि इनका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन ये वो स्किल्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये छोटा सा कंपैरिजन दिया गया है आपको यहाँ के ऊपर कि 2015 और 20 में। भाई प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया 2015 और 20 के अंदर कुछ चेंजेस आए। 2015 में कुछ स्किल्स नहीं थी जो कि 2020 में ऐड की गई, 3 नई स्किल्स को ऐड किया गया है। और यहाँ के ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस या इसमें दिया होगा फॉर एग्जांपल that skills and completely new in the list where emotional intelligence and cognitive flexibility skills that excel top executive today. Critical thinking has been upgraded importance as well as good judgment and decision making. तो ये वो स्किल्स हैं जिनके ऑर्डर भी चेंज हुए हैं। तो हमने जो आपको स्लाइड दिखाई थी पहले, आपको पहले वाली स्लाइड बता रही है वो स्किल्स हैं, वो स्किल्स इस ऑर्डर में है, वो ऑर्डर विल रिमेन्स द सेम, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्डर विल रिमेन्स द सेम। ठीक है, चलिए हम आगे मूव ऑन करते हैं, वन बाय वन स्किल्स के बारे में बात करते हैं आपसे। भाई प्लीज मूव टू नेक्स्ट साइड, नॉट दिस वन। Right. So the first point says that the complex problem solving. Our society is becoming more diverse, networked, and more complex than it used to be. It is not surprising that the ability to solve complex problems is one. People who are able to survey the big picture and find answers to complex problems are well prepared for the demands for the future. Right. अब इस सिचुएशन में दिमाग में देखिए कि जब जिस वक्त कोरोना का आना स्टार्ट हुआ था मार्केट में, जब भी कोरोना स्प्रेड करना स्टार्ट हुआ था, इनमें कई लोग ऐसे थे जो बैठ के इंतजार कर रहे थे कि इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या होगा
और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले से ही इसको अज्यूम कर लिया था, प्लान बी तैयार कर लिया था कि अगर ऐसा ऐसा होगा हमारे साथ में तो ये पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास में रहेंगे। कुछ पहले से प्रिपेयर्ड होके बैठ गए थे और कुछ को मजबूरी में बाद में काम करना पड़ा। तो जिनको बाद में काम करना पड़ा, मजबूरी में काम करना पड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्होंने बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट होकर के डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ के अंदर और उनकी सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट हो गई है। लेकिन जिन्होंने पहले से ही एक बोलते हैं ना कि प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लिए थे, पहले से प्रॉब्लम को सेंस कर लिया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर आप में कोई भी ऐसा है जो आज कहता है कि उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं है, तो आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत में ही सुन लिया होगा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपके टीचर्स ने, फैकल्टीज ने, मेंटर्स ने, सबने बोला होगा आपसे, लेकिन क्योंकि आपने फोकस नहीं किया तो आज वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, राइट? तो आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह उससे भागते रहे, स्टेज से दोस्ती करना छोड़ दी, लोगों से इंटरेक्शन करना बंद कर दिया, राइट? हम चीजों से भागते रहे, दौड़ते रहे, ये पता होने के बाद भी कि इंपॉर्टेंट है। तो बेटा प्रॉब्लम जो है ना हमारे लिए हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है, अपने आप को एक्सेल करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए और अपने आप को बदलते हुए वक्त के हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। तो जो भी हालात बदल रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ की बात करें, पर्सनल फ्रंट की बात करें, हम मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट कैसे चेंज हो रही है, क्या क्या नई नई चीजें मार्केट में आई हैं, तो उस चेंज को आपको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको उस चीज पे काम करना है कि आप उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। जब आप इंटरव्यू में जाके बैठेंगे एचआर के सामने, एचआर जब कोई सवाल करता है, ध्यान दीजिएगा, एचआर आपसे कोई भी 4-5 सवाल करेगा, वो 4 या 5 सवाल के पीछे एक लॉजिक होगा, एक रीजन होगा, उसे खाली बुलवाना नहीं है आपसे। वो चीजों को मैच करने की कोशिश करेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, आप चीजों को परसीव कैसे करते हो, आप ओपन माइंडेड हो, आप आपकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप ओपन माइंडेड हो। बोलते हैं ना, ग्रोथ माइंडेड और फिक्स माइंडसेट, दे आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं और एक फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। तो दे आर टू टाइप ऑफ पीपल। तो आप ग्रोथ माइंडसेट में आते हो या आप फिक्स माइंडसेट में आते हो। तो ये वो चीजें हैं जिसको एचआर ऑब्जर्व करेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन के ऊपर मोहर लगती है। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसके लिए आपको फ्यूचर में आने वाली डिमांड्स को लेकर के पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, अवेयरनेस बना के रखना पड़ेगी, ताकि आप अपने आप को उन स्किल्स से बोलते हैं अपग्रेड कर सके जिसकी जरूरत आने वाले वक्त में पड़ने वाली है। तो एचआर को ये सेंस लगेगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एमबीए का बच्चा है, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई नॉलेज गेन करना चाहता है, नथिंग रॉन्ग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द सेम थिंग। तो इट इज नॉट दैट कि हम डोमेन चेंज कर रहे हैं अपना, लाइक आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हम जहां पर भी काम करने जाएंगे, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर एक एड ऑन सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, अगर सर्टिफिकेशन नहीं भी करते, नॉलेज भी गेन करते हैं, तो परफेक्ट है, क्योंकि ये हमारी आगे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। हमारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी आगे वाले प्रोसेस में, राइट? सेकंड आता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये क्या बोलता है हमसे, ये कहता है द टाइम इन विच executives appreciated yes figures and command discipline is long gone. टुडे इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग काउंट। अब क्या बोल रहा है कि एक टाइम वो था जहां के ऊपर जी हजूरी करने वाले लोग, जिनको इन शॉर्ट कहते थे कि मतलब कि जो सिर्फ यस यस पर्सन होते हैं, जिनको कभी भी अपने बॉस को ना बोलना नहीं आता, उनका टाइम अब जा चुका है। वो अपनी लाइफ की जिंदगी जी चुके हैं, अब उनके पास में प्रोफेशनल ग्रोथ को कुछ भी बचा नहीं, दे आर कम्प्लीटली गॉन नाउ। अब किसकी जरूरत पड़ेगी? क्रिटिकल थिंकिंग वालों की जरूरत पड़ेगी, जो कि कंपनी के करंट प्रोसेस के अंदर अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सके, जो बता सके, जिनमें इतने गट्स हो, इतनी सेल्फ एस्टीम हो, बता सके कि ये प्रोसेस में, ये चीज में प्रॉब्लम है, इसको अगर ऐसे हम चेंज करते हैं, एक इसको हम इम्प्रोवाइज करते हैं, चीजें बेटर हो सकती हैं। इम्प्रोवाइजेशन की सजेशन देना हमारे हाथ में है, हम कंपल्शन की बात नहीं कर सकते, जैसा हमने कहा वैसा हो ही। लेकिन ये बताता है कि आप सिर्फ अपनी जॉब को लेकर के फोकस नहीं हो, आप कंपनी की ग्रोथ को लेकर के भी फोकस हो, यू आर ग्रोथ ओरिएंटेड, राइट? बिकॉज द डिफरेंट पर्सपेक्टिव and inputs of the employees are valuable for modern companies. The ability to think critically is evidence of strong character and optimal prerequisites for leadership position. अगर आप चीजों को फोरसीन कर सकते हो, फ्यूचर को देख सकते हो, उसके हिसाब से अमेंड कर सकते हो, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं। कौन सी क्वालिटीज आती हैं लीडरशिप की? एक लीडर जो है वो किसी को गन पॉइंट पे लीड नहीं करता, वो लीडर जो है वो अपने आइडिया
यूनिकनेस के थ्रू, अपने यूनिक थॉट प्रोसेस के थ्रू ही लोगों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है लीड करने के लिए, राइट। थर्ड में देखते हैं क्रिएटिविटी एंड एब्सोल्यूट कोर कॉम्पिटेंस फॉर फ्यूचर जॉब इज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के साथ में तो कोई कॉम्प्रोमाइज है भी नहीं। ये जो टॉपिक है क्रिएटिविटी का, ये 2015 में 7th प्लेस पे था, आज की तारीख में 3rd प्लेस पे मौजूद है बेटा। ये तो ये बता रहा है इसकी जो ग्रोथ है। तो क्रिएटिविटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन वाई आपके रिज्यूम के ऊपर आपके हॉबीज, आपके इंटरेस्ट का होना कंपल्सरी होता है, ताकि एचआर ये फाइंड कर सके कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है। This applies not only to classic creative ideas such as advertising or product designing, but it also space of working life. Anyone who is able to find creative approaches and solutions and bring new ideas will be more successful than others. फॉर एग्जाम्पल, एक रिपोर्ट मैं प्रेजेंट करता हूँ, एक मेरा कलीग प्रेजेंट करता है, तो रिपोर्ट सेम ही है, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो अलग है। मेरे तरीके पे मेरी क्रिएटिव अप्रोच है और मेरे फ्रेंड पे उसकी अप्रोच है। लेकिन अगर हम 4-5 लोग जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, सारे के सारे आके बैठ जाए और बोले यार हम लोग काम करते हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर लेते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के बाद में बेटा आपकी क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी? आपके रिज्यूम के साथ में ऐसे ही हुआ है। अगर ध्यान देंगे आप, अगर आपके रिज्यूमो में बिल्कुल यही हुआ है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के चक्कर में यू हैव किल्ड योर क्रिएटिविटी, राइट। भीड़ का हिस्सा बनने के लिए यू हैव किल्ड योर क्रिएटिविटी, ग्रुपिज्म के चक्कर में यू हैव किल्ड योर क्रिएटिविटी। तो यूनिक होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट होना बहुत जरूरी है, डिफरेंट होना बहुत जरूरी है, राइट। अगर हम डिफरेंट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों की भीड़ में दिखाई पड़ेंगे एक जैसे, राइट। अगर 1 लाख की भीड़ सामने खड़ी हुई हो, आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो 3rd फ्लोर के ऊपर, तो किस तरह के लोगों को फाइंड करना आसान होगा? तो जवाब आता है पीपल दोज हु आर वेयरिंग टर्बन, मींस दैट जो सिख सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको पहचानना आसान होगा, बिकॉज उनके सर पर टर्बन होता है। तो ये जो यूनिकनेस दैट इज इंपॉर्टेंट। हम दोस्ती करते हैं जो मेरे जैसा उसके साथ में, बातचीत करते हैं जो मेरे जैसा है। तो जब आप अपने जैसों के साथ में उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, तो वो आपके अंदर कोई यूनिक टेस्ट कहाँ से आएगा? यू वोंट बी एबल टू लर्न। जब आप नई चीज को अप्रिशिएट ही नहीं करोगे, तो हाउ वुड यू लर्न समथिंग डिफरेंट, समथिंग समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू? तो बी इन दैट। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है क्रिएटिविटी के नाम के ऊपर कि अगर आपके कॉलेज जाने के 3 रास्ते हैं और आप पिछले 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से एक ही फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज छोड़ दीजिए। ये आपकी क्रिएटिविटी को किल कर रहा है। हर दिन नया रास्ता अपनाइए, राइट। एक्सप्लोर न्यू थिंग। नए रास्ते पे जाओगे, नया माहौल दिखेगा, नई तरह के लोग दिखेंगे, नई भीड़ दिखेगी, नए एक्सपीरियंसेस होंगे, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, समथिंग वेरी डिफरेंट। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू फेस इट। तो कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है और थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन में आना है अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए। भाई प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Right. Number 4, human resource management. Every company on the skill of the people who work for it. Smarter human resource management not only selects suitable character but also maintains a good corporate culture and takes into account the emotions of the employees. Emotional intelligence and skills are therefore essential here as well. अब यहाँ बात होती है एम्प्लॉय के रिटेंशन की बात होती है। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेंशन का रेट बहुत बढ़ जाता है, तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज आता है किसके ऊपर? एचआर के ऊपर। एचआर पॉलिसीज जो है वो इतनी साउंड या ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ विच कोई भी एम्प्लॉय स्टिक होकर काम यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, राइट। कहीं ना कहीं एचआर इंटरेक्शन जो है, जो एम्प्लॉय सेंट्रिक चीजें होती है, जब वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा होता, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस होते हैं। तो जो आप में से जो भी एचआर फील्ड में काम करने जाएगा आगे आने वाले वक्त के अंदर, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो दैट कि ये रिटेंशन पॉलिसीज क्या होती है। इसके लिए बोनसेस होते हैं, इसके लिए आपके लिए इंटरनल पॉलिसीज बनती हैं इसके लिए, जिसके थ्रू आप अपने आप को आप के बैठते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज से काम कर रहे होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ जान रहे होते हैं, उनके इमोशंस को शेयर कर रहे होते हैं, राइट। यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो जब किसी इंसान को कोई स्कोप नहीं मिलता बोलने का, वो फ्रस्ट्रेट होता है। जब उसको बोलने का स्कोप मिलता है, चांसेस मिलते हैं बात रखने के लिए, बात को प्रेजेंट करने के लिए, तो फ्रस्ट्रेशन बातों से बाहर निकल के जाता है, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये आज की तारीख में कॉर्पोरेट का ही बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है कि वो लोग जो मेरे एम्प्लॉयज को रिलैक्स कर रहे हैं, दोबारा फिर से उनको चैनलाइज करें, उनके इमोशंस को बाहर आने का प्लेटफॉर्म दे दें, और ताकि हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है हमेशा वो हाई स्टैंडर्ड्स पे मेंटेन रहे। एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर। नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर 5, दैट इज कोऑर्डिनेशन विद अदर्स एंड टीम वर्क। इसको हम कहते हैं टीम बिल्डिंग भी कहते हैं इसको हम, राइट। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, किसी भी टीम के अंदर मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर्स होंगे, 12 मेंबर्स होंगे, 15 मेंबर्स होंगे। ये 10, 12, 15 जो मेंबर्स हैं, इनके बारे में अगर कहें आपसे, ये टीम है हमारे पास। ये जो टीम है,
ये अलग अपब्रिंगिंग की है, अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड की है, अलग तरह की सोच के लोगों की है, अलग रीजन के लोगों की है। इसमें हर चीज बहुत डिफरेंट है, हर चीज कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये बात तो आप मान के चलिएगा कि आपको आपके जैसा बंदा आपकी टीम में नहीं मिलेगा। कॉलेज के तो 60 लोगों में 60 लोग, या आपकी क्लास में 60 में से कौन मेरे जैसे 2 या 3 हैं उनके साथ में आ जाऊं, बाकी लोगों के साथ में मैं निकल जाऊं। बड़ा बड़ा सॉरी टू स्टार्ट, इसको ना हमारी जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में टर्म है वो छर्रे बोलते हैं, राइट। मेरे जैसे के साथ बैठना मतलब छर्रे के साथ में आके बैठना, तो दैट द वर्ड कॉल्ड छर्रा वी यूज। लाइक हम दोनों तीनों एक जैसे हैं, कोई किसी में कमी नहीं निकाल पाएगा, कोई किसी में कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएगा। जैसे आए थे 3 साल पहले 4 साल पहले, वैसे ही वापस भी जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं हमको, राइट। तो इट सेज दैट टीम वर्क का मतलब हो गया लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, लोगों को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना। इसके लिए फिर दो बातें आती हैं, एक आता है हमारे पास में हमारा इंट्रा पर्सनल स्किल्स, दूसरी आती है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंट्रा पर्सनल स्किल्स का मतलब होता है कि मैं अपने आप को कितना जानता हूँ, और इंटरपर्सनल का मतलब वो स्किल्स जो लोगों के साथ में एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट को बनाने में हेल्प करेंगी, राइट। तो इन दो पे हम काम करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे इंट्रा के बारे में। इंट्रा मतलब मुझे पता होना चाहिए मुझे गुस्सा कहाँ पे आता है, मैं कहाँ पे फट जाता हूँ, मेरा टॉलरेंस लेवल कितना है, पेशेंस कितना है, ताकि जब कभी भी हम ग्रुप में बैठे हुए हैं और जब वो डिस्कशंस, वो आर्ग्यूमेंट जो है वो उस फेज में जा रहे हैं जहां के ऊपर ये मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, यहाँ पे मुझको ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होने के बाद में आई मे बी इन अ वेरी बैड शेप। प्लीज मेक श्योर दैट आप अगर अपने आप को जानेंगे तो आप एक्सक्यूज मी बोल के वहां से निकल जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम सच काइंड ऑफ अ बैड सिचुएशन। तो इंट्रा पहले खुद को जान लीजिए, फिर इंटर की बात करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल में क्या चाहिए हमको, गुड लिसनिंग स्किल चाहिए। सिर्फ बोलने वाला इंसान नॉट नॉट रिक्वायर्ड, सुनने वाला भी चाहिए, राइट। जब आप सजेशंस दें, एडवाइसेस दें, तो मेक श्योर बाइस्ड, वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो जेन्युइन होना चाहिए। तो टीम में काम करने वाला ऐसा इंसान जो कि परसेप्शन पे बिलीव करता हो, इंटरप्रिटेशन पे बिलीव करता हो, जो कि बाय नेचर बायस्ड हो लोगों को लेकर के, वो कभी भी अच्छा टीम प्लेयर नहीं बन सकता। ये कुछ चीजें हैं जो अच्छे टीम प्लेयर बनने से रोकती हैं आपको। नेक्स्ट में आता है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। बेटा बहुत सिंपल वर्ड में समझाऊंगा मैं आपको इसके बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में वो जो सिंपल टर्मिनोलॉजी है वो ये कहती है, अगर कोई इंसान अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बच्चे से मिला मेरे कॉलेज के अंदर, शी वॉज अ गर्ल एंड आई आस्क्ड दैट, बहुत सैड उसमें थे, पूछा मैंने क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा। हमारे यहाँ पे कॉलेज में प्रोग्राम होता है मेंटरशिप का, तो मैं उसकी मेंटरिंग कर रहा था। उसने बोला कि सर एवरीथिंग इज फाइन बट देयर इज वन थिंग आई डू नॉट लाइक। क्या पसंद नहीं है? सर मुझे मेरी हाइट पसंद नहीं है। हाइट पसंद नहीं है? बोले यस सर। तो मैंने बोला क्यों भाई क्या हुआ सर, हाइट थोड़ी थोड़ी है मेरी। ओके वेरी नाइस। तो मुझे बेटा कब से परेशान हो अपनी हाइट को लेकर के? सर 4-5 साल से परेशान हूँ, मतलब भी मैं हाइट ही नहीं बढ़ती मेरी। तो मैंने बोला बेटा 4-5 साल से परेशान हो, फ्रस्ट्रेट भी होते हो, इरिटेट भी होते हो, माहौल भी खराब करते हो घर का भी अपना पूरा पूरा, आपकी हाइट बढ़ी है आपकी? आपकी हाइट में इजाफा हुआ? बोले नहीं सर नहीं हुआ। मैं समझ में आ गया ना कि रोने से, चिल्लाने से, परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके अंदर। तो बेटा यहाँ क्या मतलब हो गया है, एक्सेप्ट योरसेल्फ, इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं छोटा हूँ, मेरे कॉम्प्लेक्शन डार्क है या फेयर है, वॉट एवर इट इज, हाउ मैं कैसे, मेरा अपीयरेंस कैसा है, ये दीज थिंग्स डजंट मैटर इन योर प्रोफेशनल लाइफ। व्हाट मैटर्स व्हाट यू हैव इन योर ब्रेन। आपके टॉप फ्लोर पे क्या है आपके प्रोफेशनल करियर में, ये मैटर करता है, ना कि जो आपका अपीयरेंस है वो। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो अपने आप को, आप जैसे भी हो। एक्सेप्ट योर सेल्फ, दैट इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। चीजों को स्वीकारना, चीजों को एक्सेप्ट करना, शुरुआत अपने आप से होती है, फिर उसको आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोल रही है, दिस इज द एबिलिटी टू करेक्टली परसीव वंस ओन एंड अदर्स फीलिंग। क्या बोल रहा है, अपनी फीलिंग्स को भी समझना है, दूसरे की समझना है। तो फीलिंग के बारे में क्या बोलते हैं इसको हम, ये सिंपैथी में नहीं जाएगा, इसके लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एम्पैथी का। एम्पैथी का मतलब होता है पुट योर लेग इन द शूज ऑफ दैट पर्सन। किसी इंसान को बोलना आसान होता है कि तूने बैड रिएक्ट किया। आप एक काम करिए, फीडबैक देने के पहले, एडवाइस देने के पहले उसकी जगह पे खड़े होके उसके जूतों में पैर डाल के देखिए कि जिस तकलीफ से वो गुजरा था तो उसका रिस्पॉन्स कैसा था। तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स था वो कितना सही था, कितना गलत था। Emotions have been excluded from professional life for a long time. Today, the realization prevails that they can also decide success and failure in this sphere of life, because we always work with people.
शी एंड हर एक्शन आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन। अब बोला गया है कि वर्किंग लाइफ में इमोशंस को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया गया है। बोला गया है वर्क योर लव योर वर्क, डोंट लव योर ऑर्गेनाइजेशन। अपनी कंपनी से प्यार करने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी कोई भी हो उससे प्यार करने की जरूरत नहीं है, तो आपको प्यार करने की जरूरत है अपने काम से, राइट। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि जब हम इमोशनल लोगों के साथ अटैच होते हैं तो हमको उनकी फीलिंग्स में अच्छा या बुरा लगता है, एंड वी गो वोकल अबाउट इट। मोमेंट वी गो वोकल अबाउट इट, सुनने वालों को अच्छा लगता नहीं है, एंड द प्रॉब्लम गेट्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर। तो बोला गया है या फर्स्ट लाइन में कि इमोशन हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, निकाल दिए, एलिमिनेट कर दिए, बिल्कुल चले गए। रियलिटी के साथ में चीजों को एक्सेप्ट करते हुए मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। और इमोशंस में क्या होता है, हम एक्सपेक्टेशंस कैरी कर लेते हैं, रही दूसरों के साथ में कि मेरे साथ में ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनको लेके चलना ही नहीं है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। हर आदमी अलग बैकग्राउंड से आया है, अलग एनवायरमेंट से आया है, अलग अपब्रिंगिंग से आया है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके जैसा होना पॉसिबल नहीं है। तो आपका काम क्या है, वो जो 8 और 9 आवर्स की जॉब है, उसमें दो चीजों में फैसला करना है आपको। पहला वर्ड है वो है रिएक्ट करना, दूसरा है रिस्पॉन्स करना। अगर आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम का साइज मल्टीपल हो जाएगा, अगर आप सिचुएशन में रिस्पॉन्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दोनों में फर्क क्या है, रिएक्शन क्या हो गया, मेरा इमोशनल सेटबैक हो गया, मेरा इमोशनल रिएक्शन हो गया टू अ पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन। तो यहाँ बोला गया, यहाँ पे इमोशंस का कोई भी रूल नहीं है, राइट। आपको करना क्या, वो रिस्पॉन्स करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की तारीख में आप अपने कॉलेज के किसी फैकल्टी के साथ में खड़े हो, या आप डीन के साथ में खड़े हो, कॉलेज के डीन के साथ में, तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर बदल जाएगा। डीन के साथ में यू आर गोइंग टू बी मोर रिस्पेक्टफुल कंपेयर टू योर फैकल्टी मेंबर। विद योर फ्रेंड टू अ टीचर यू बी मोर रिस्पेक्टफुल टू योर टीचर कंपेयर टू योर फ्रेंड। तो ये हमको बदलाव करने आते हैं, किसको क्या देना है ये हमको पता है, राइट। तो वी हैव टू बी, वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिव। हमें लाइफ में रिएक्टिव कभी नहीं होना है बेटा, हमको हमेशा रिस्पॉन्सिव रहना है। एवरी सिंगल इंडिविजुअल प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, so we have to be responsive to every situation, we should not be reactive to it, right। तो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल में रखें और अपने रिस्पॉन्सेस पे काम करें कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ चैलेंज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, top worker of the future are not afraid to implement creative innovation, take calculative risk and take responsibility। ये दो वर्ड होते हैं बेटा इंग्लिश के अंदर, एक को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक को हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है मुझे कोई जिम्मेदारी दी और मैंने ले ली, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने ले ली, लेकिन अब उस जिम्मेदारी को लेने के बाद जो आउटकम आएंगे, उस आउटकम का भी सॉलिडली रिस्पॉन्सिबल मैं रहूंगा, राइट। तो टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ थिंग। लाइफ में डिसीजंस लीजिए, अभी आपके डिसीजन, अभी आप लोग स्टूडेंट हो, छोटे छोटे डिसीजन लेना लाइफ में स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ के अप्रोचेस में, डिसीजंस में जो गलतियां हो रही हैं उनको आप बेसिक लेवल पे करेक्ट कर सको। आज डिसाइड करोगे तो बहुत कम कीमत चुकानी पड़ेगी आपको अपने गलत फैसले की, क्योंकि आज आप अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आपने लाइफ में कंफर्ट जोन में खेला, सेफ जोन में खेला, और कभी जिंदगी ने चैलेंजिंग सिचुएशंस डाल दी आपके सामने जहां पे आपको डिसीजन लेने के पे काम करना पड़ेगा, आपके डिसीजंस आपकी लाइफ को और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते रहिए, उन पे काम करते रहिए, उनके प्रॉस एंड कॉन्स को एक्सपीरियंस करते रहिए, ताकि आपको अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक दिन फेथ आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन वो फेथ आ जाएगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आपके लिए काम करती हैं, काम हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम पहले बाद में आती है हमारे पास में, पहले ही अपने फ्रेंड को फोन लगा के बैठ जाते हैं, एक प्रॉब्लम के लिए 10 लोगों से हम एडवाइस लेते हैं, या ऐसा हो गया क्या करूं, वैसा हो गया क्या करूं। तो या बी योरसेल्फ अ गुड जज। आपको पता है आपके हालात क्या हैं, आपको पता है आपकी कंडीशन क्या है, आपको पता है कि पूरी बात क्या है। क्योंकि जब हम किसी इंसान को कोई बात बताते हैं ना, तो हम 50% भी नहीं बताते। दो की लड़ाई हो गई तो एक बोलेगा पूरी गलती सामने वाले की, मैंने कुछ किया ही नहीं, राइट। तो हर आदमी अपने आप को साफ रख के बात करता है, तो डिसीजन देने वाला भी आपके लिए वो बायस्ड हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज उसको सच्चाई पता ही नहीं है, आप जो बोल रहे हो उसने वही सुना हुआ है। तो decision making means start taking small decision in your life and ready to face the pros and cons। अभी आपके फैसले आपको बहुत लंबा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आगे आने वाले वक्त में आपके हर एक फैसले की कीमत बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्किल पे आते हैं।
दैट इज सर्विस ओरिएंटेशन. एम्पैथी इज बेसिक रिक्वायरमेंट. सर्विस ओरिएंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मैं हमेशा बोलता हूं मेरी लाइक कॉर्पोरेट की टीम में जब मैं ट्रेनिंग करवाता हूं मैं उनको, जो सेल्स में होते हैं, और खासतौर से इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि मैं बोलता हूं कि जब आप इंश्योरेंस बेचने जाओगे अपने इंसेंटिव के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपने कमीशन के लिए, तो 90% चांसेस है कि आप बेच के नहीं आ पाओगे. लेकिन जब आप इंश्योरेंस बेचने जाओगे किसी के माँ बाप को, किसी के परिवार को सुरक्षा देने के लिए, समाज सेवा करने के एटीट्यूड से बाहर निकल के जाओगे, तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सेल बिकने के. आपकी जबान से फिर वो कंटेंट निकल करके आएगा जो वो सामने वाले इंसान की रिक्वायरमेंट हो. राइट. तो ये क्या है, ये सर्विस ओरिएंटेशन का बिहेवियर है. अगर आपके अंदर सेवा भाव है, इफ यू रियली वांट टू सर्व फॉर पीपल, ऑटोमेटिकली ये इंडस्ट्री बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठी है आपको. सर्विस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है सर्व करने के लिए. आज की तारीख में इंजीनियरिंग डोमेन में भी देखा होगा आपने कि एक नई प्रोफाइल है, बोलते हैं सर्विस इंजीनियर. अभी सर्विस इंजीनियर कौन होते हैं? बिकॉज इनको कस्टमर के घर पे जाके टीवी रिपेयर करना होता है, मशीन रिपेयर करना होता है, एसी रिपेयर करना होता है. तो ये टेक्निकली भी साउंड होना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ में इनके अंदर गुड सर्विस स्किल्स भी होना चाहिए ताकि वो कस्टमर से प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सकें, ग्रूमिंग के अंदर हो, बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर के अंदर. उनको पता हो कि मसाला खाते हुए वो कस्टमर से बात नहीं करनी. उनको पता हो कि स्मोक करने के बाद नहीं जाना, पहले कुछ माउथ फ्रेशनर भी खाना है. उनको पता हो कि अपने बालों को कॉम करके, अपनी शर्ट को टक इन करके, ये दीज आर द बेसिक पार्ट. उनको ऐसे जाना है ताकि वो सर्विस का जो जज्बा है वो दिखाई पड़े उनके अंदर. right. So service orientation is very important, because service orientation not only means fulfilling expressed wishes but also foresighted anticipation of these. इसका मतलब ये नहीं है कि आज किसी की दुकान पे कोई कस्टमर आ गया, उसने माल बेच दिया, अब वो चाहता है कि ये जो एक बार जो कस्टमर आया है ये रिश्ता बना रहे, ये प्रोसेस में लगा रहे. हमको नए नए कस्टमर तो बनाएंगे, अलग बात है, लेकिन जो पुराना वाला बंदा है वो लगातार रिपीटेशन में आता रहे. आप अपने एक्सपीरियंस देख लीजिए, जिस दुकान पे आपसे अच्छे से बात की जाती है, इज्जत से पेश आते हैं, वहां बार बार जाते हैं. और जहां एक बार भी कोई आपसे टेढ़ी आवाज में बात कर दे, यू वोंट फाइल कंफर्टेबल. राइट. नंबर 9 पे आते हैं. दैट इज अबाउट नेगोशिएशन स्किल्स. 2015 वाज स्टिल एबल टू नेगोशिएट 5. ठीक है, ये तब 5 पे था, आज ये 9 के ऊपर आ गया. नेवरदलेस इट रिमेंस इंपॉर्टेंट, इट इज नेगोशिएटेड एवरीवेयर. फॉर एग्जांपल, जब आप अभी फ्रेश जॉब करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन यस, जॉब इंटरव्यू में नेगोशिएशंस काम करती हैं. जिसको अपनी स्किल्स पे बहुत ज्यादा फेथ होता है, भरोसा होता है, वो सैलरी को लेकर निगोशिएट करता ही करता है. उसको पता है कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है जो मार्केट में अपनी एक बोली लगवा रहा है, वो नेगोशिएट करता है. जिसको अपने ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं होता, कोई एबिलिटी के ऊपर भरोसा नहीं होता, ऐसा इंसान क्या करता है, उसको जो मिल जाता है वो हाँ मान के बैठ जाता है. दिस इज अबाउट दैट योर नेगोशिएशन स्किल्स. ठीक है. राइट. और ये हम जो कस्टमर इंटरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, सेल्स की बात कर रहे होते हैं, अगर आप में से जो भी मुझे सुन रहा है, अगर उसकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हैं और वो बी करके बैठा हुआ है या एमबी करके बैठा हुआ है, तो बेटा आपके लिए मार्केटिंग की जॉब भी है. इन एवरी कोलैबोरेशन, इन एवरी बिजनेस डील, नेगोशिएशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. वेरी क्रूशियल. नंबर 10 पे आते हैं. लास्ट स्किल है हमारी, दैट इज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी. कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि द कैपेसिटी एंड द एबिलिटी ऑफ योर माइंड टू अडॉप्ट टू चेंज. ठीक है. किसी भी तरह की, चाहे वो सोशल लाइफ की बात करें, हम किसी भी तरह के एनवायरनमेंट की बात करें, हमारे माइंड की एबिलिटी और उसकी कैपेसिटी के चेंज को एक्सेप्ट करना, चेंज को स्वीकारना. तो हम चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, तो क्या होता है, हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत कंफर्टेबल तरीके से मूव ऑन करते हैं. हमारे लिए भी चैलेंजेस कम हो जाते हैं. राइट. मींस बीइंग एबल टू अप्लाई वंस एक्वायर्ड नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन. These flexibilities can include expertise as well as social skills or negotiation skills too. राइट. अब कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी भी एनवायरनमेंट में काम करने जाते हैं, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना, वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है, जो उनका माइंडसेट है, उसके हिसाब से मूव ऑन करना. मींस दैट टोटल जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, सब चीज को वहाँ के ऊपर एक्सेप्ट करना, उसको अडॉप्ट करना, उस कल्चर के अंदर रम जाना, लाइक अ वाटर. कि पानी को किसी भी सांचे में डाल दीजिए वो सेम शेप में आ जाएगा. तो वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ मेंटल स्किल, मेंटल एबिलिटी, कि हम कहीं पर भी आराम से डेवलप कर सकते हैं. राइट. सो गाइस हियर, अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था एक पेज लेकर के उस पेज को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में आप मुझे बताएंगे कि आई कैन और आई कांट वाला. तो मैं यहाँ पे आपको एक लॉजिक दूंगा. यहाँ के ऊपर मैं आपको पहले तो ऐसा भाई, इज दिस अ वे वी कैन फाइंड आउट कि लोगों ने पेज बनाया है या नहीं बनाया? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? They can write on in the chat section whether they have written or they have not written.
तो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट अगर आपने किसी ने भी इतने छोटे से एफर्ट्स किए हैं एक पेज को डिवाइड करके उसमें मेंशन करने के लिए, तो प्लीज मुझको चैट में बताइएगा कि आपने आई कैन और आई कांट लिखा है या नहीं लिखा। आप में से किसी ने भी किया है या नहीं किया? ओके, आई हैव थिंक फ्रॉम मोहम्मद अली मिराज से कि बोल रहे हैं उन्होंने किया है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने करवाया क्यों मैंने आपसे ये है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप आई कैन देखेंगे, आपको पता है ये तमाम चीजें हैं जो आपने की हुई हैं, राइट, आपने लिख दिया, उसके अंदर आपके आई कांट की लिस्ट काफी लंबी भी होगी आई कैन के मुकाबले में। अब मेरा सवाल ये होगा मिराज से स्पेशली, खास तौर से, और बाकी जिन्हों जो सुन रहे हैं मुझे, आपके आई कांट की लिस्ट में ऐसे कितने आई कांट हैं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है? जितने भी आई कांट लिखे हैं आपने, उन आई कांट में से कितने आई कांट है जिनको आपने कभी उन पे अमल करने की कोशिश करी है, कभी ट्राई किया है? मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, बिना आपको जाने हुए, बिना आपको पहचाने हुए, बिना आपकी शक्ल देखे हुए, कि आपके आई कांट की लिस्ट में से मिनिमम 90% आई कांट होंगे जो कि नॉट ट्राइड, नेवर टेस्टेड। ये बात मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, मिला नहीं हूँ आपसे, बट आई कैन चैलेंज दैट आपकी आई कांट की लिस्ट के 90% आई कांट वो हैं जो कि नॉट नीदर ट्राइड नॉट टेस्टेड है। मिराज, प्लीज से whether I'm right or wrong, because you are the only one who respond to my query, who respond to my question. अबाउट 20% राइट, अबाउट 20% राइट, ठीक है, आपका रेशियो जो है वो 20% राइट का गया, बट स्टिल 80% इज स्टिल अ वेरी बिग फिगर। तो हमारे आई कांट में हमने वो तमाम चीजें डाल के रख दी हैं पहले से एडवांस में, जिन पे कभी हम चले ही नहीं, हमने कभी उन पे अटेम्प्ट भी नहीं किया, हमने कभी मूव ऑन भी नहीं किया, उनको हमने आई कांट में लेके डाल दिया, राइट। तो बेटा ये इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे, ये जो आई कांट की लिस्ट है ना, ये वो होना चाहिए जिसपे आपने एक बार नहीं 3 से 4 बार एफर्ट्स किए हैं। 3 से 4 बार जब आपको रिजल्ट नहीं मिला, उसके बाद आप बोलोगे यार ये मैं नहीं कर सकता, तब मैं बात मान लूंगा मैं आपकी, राइट। लेकिन अगर आपने एक आध बार ही अटेम्प्ट किया है और अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आई एम सॉरी, वो आई कांट के की लिस्ट में आना जस्टिफाइड नहीं करता किसी भी हाल। एहसान भाई, कैन वी हैव अ सेशन फ्रॉम हियर नाउ? Yes, I would now request every participant to raise their queries in the Q&A section. आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है सर से, तो आप प्लीज आपके स्क्रीन में Q&A करके एक बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करिए एंड राइट योर क्वेश्चन ओवर देयर। तो सर उसको वन बाय वन आपके क्वेरीज को आंसर करेंगे। So we can wait for about 4-5 minutes till the students write down their questions. फाइन, श्योर। सो फ्रेंड, इन द मीन, जब तक आप अपने आप क्यूएनए फ्रेम करिए, अब मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। आपको बोलता कि ये एक छोटी सी स्टोरी है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आएगी, क्रिएटिव में भी काम आएगी, स्टोरी है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। ये स्टोरी है एक लोन शार्क की। एक लोन शार्क ने ना एक फैमिली को बहुत ज्यादा पैसे दिए होते हैं, डेब्ट दिया होता है, बहुत ज्यादा कर्जा दिया होता है। अब जब ये कर्जे की वसूली नहीं कर पा रहे होते, तो ये बहुत ज्यादा लालच में आते हैं और उस इंसान को बुलाते हैं, बोलते हैं कि भाई, आप पे मेरा बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, आप पैसा दे नहीं पा रहे, आप इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रहे, आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो अब आप आपकी डॉटर की शादी मुझसे करा दीजिए, तो मैं आपका कर्जा माफ कर दूंगा। अभी जो लोन शार्क है ना, ये एक अभी अबाउट लाइक 60 ईयर्स प्लस एज का आदमी है, बहुत अगली दिखाई पड़ता है, और ये जो ये जिसके पास लोन कर्जा बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही ज्यादा इसकी यंग डॉटर है, बहुत ब्यूटीफुल डॉटर है। तो ये जो लोन शार्क अब लालच में आ गया है, ये अब उसकी इस प्रॉब्लम को अपने बेनिफिट में इनकैश करने के प्रोसेस में आ गया कि दो ऑप्शंस हैं, अर्लीस्ट पॉसिबल मेरा कर्जा चुका दीजिए या फिर आपकी डॉटर की शादी मुझसे करवा दीजिए, टू ऑप्शंस है आपके पास। दिस गाय बिकम वेरी कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही मेरे एंड के ऊपर, तो व्हाट शुड आई डू इन दैट? So what he did, right? So what he did, बोलते ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक बहुत जेन्युइन ऑफर पे काम करते हैं, मैं आपके घर के ऊपर आऊंगा एक थैला लेकर के, तो उसमें पेबल्स पड़े होंगे नीचे फर्श के ऊपर, मैं एक ब्लैक कलर का पेबल लूंगा और एक व्हाइट कलर का पेबल उठाऊंगा नीचे से, उसको थैले में डाल दूंगा। आपकी डॉटर आएगी, पेबल निकालेगी, अगर ब्लैक कलर का पेबल आया तो आपकी डॉटर मुझसे शादी करेगी और मैं आपका कर्जा माफ कर दूंगा। अगर व्हाइट कलर का पेबल निकाला तो आपकी डॉटर को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और मैं आपका जितना कर्जा है मैं माफ कर दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक कलर के ऊपर
शादी करनी पड़ेगी तब कर्जा माफ करूंगा, और व्हाइट कलर के ऊपर शादी भी नहीं करनी है, कर्जा भी माफ। फेयर इनफ। इवेंट डे के दिन क्या होता है, वो जो लोन शार्क है वो आता है, आने के बाद में फर्श पर से 2 पेबल उठाता है। इत्तेफाक से ये जो लड़की है ये देख लेती है कि लोन शार्क क्या करता है, चालाकी के साथ में दोनों पेबल उठाता है ब्लैक कलर और थैले में डाल देता है। तो ये लगता है इसको किसी ने देखा नहीं है। अब ये जो काम हो गया है यहाँ के ऊपर, अब ये जो लेडी है, ये लड़की है, इसके पास में भी क्या है, 2-3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। या तो वो पता है अगर उसने यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, ये जो प्रॉब्लम हो रही है पैसे को लेन-देन को लेकर के ये बढ़ जाएगी, क्योंकि लोन शार्क कभी भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि उसने जानबूझ के चीटिंग करी है। दूसरा ये आया कि अपने फादर की लाइफ के लिए वो अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, राइट? तो ये लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है आउट ऑफ द बॉक्स वे के थ्रू, तुम कहते हैं क्रिएटिविटी या आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ये जब लड़की को बुलाते हैं थैले से से पेबल्स निकालने के लिए, लड़की वहां पे जाती है, थैले में हाथ डालती है, और जैसे ही वो पेबल को निकालती है थोड़ा सा अपने आप को ना लड़खड़ा करके उस पेबल को फर्श पे छोड़ देती है। पेबल जो है वो नीचे गिरे पेबल से दोबारा फिर से मिक्स हो जाता है। तो शी सेड, ओ आई एम सॉरी, आई एम सो क्लमजी ऑफ मी, मुझे माफ कर दीजिएगा, गलती से पेबल मुझसे गिर गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। आपने कहा था कि एक ब्लैक पेबल है, एक व्हाइट कलर का पेबल है, तो अगर आपके थैले में से ब्लैक कलर का पेबल निकल के आता है, इसका मतलब ये है कि मैंने व्हाइट कलर का पेबल वहां से निकाला होगा। लोन शार्क समझ जाता है कि इस लड़की ने मुझे दोनों ब्लैक कलर के पेबल डालते हुए देख लिया जब वो थैले में। लेकिन अब वो यहाँ के ऊपर इस बात को बोल नहीं सकता क्योंकि वो खुद फंस जाएगा। वो शी कैन नॉट, ही हिमसेल्फ कैन नॉट से दैट कि मैंने तो चालाकी करी थी, दोनों ब्लैक कलर के लिए थे मैंने। ही कैन नॉट से दैट। तो वो थैले में हाथ डालता है, ब्लैक कलर का पेबल बाहर निकल के आता है। तो शर्त के मुताबिक क्या होता है, व्हाइट कलर के पेबल पे ना तो लड़की को शादी करनी होगी और ना ही उनको लोन के पैसे चुकाने पड़ेंगे। एंड दैट इज हाउ शी सी। तो ये है क्रिएटिव अप्रोच के थ्रू बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हम क्रिएटिव अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। यस भाई, वी आर एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस। So till now we have not received any questions, Salman sir. I would now request the college management. I have with me Mr. Mahmood Alam sir and Ms. Shara Khurshid ma'am. So if you, Mr. Mahmood Alam sir, would you want to speak about this session, today's session, sir? Uh, Hello, Yes, ma'am. Yes, ma'am. hello, hello. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. I am Shara Khurshid, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department. On the behalf of entire department and Integral University Lucknow, want to appreciate the effort of our speaker, Mr. Salman Zia, for guiding our audience in such a wonderful manner and providing the job employabilities to our students. I would also like to thank AMP India for providing such a platforms where we can organize such kinds of meaningful seminars, webinars for our students and other audiences also. Last but not the least, I would like to thank all our students because without their presence, this seminar would have no meaning. So thank you, sir, and I hope in the future we will also get in touch for such kinds of programs. It was a wonderful to have a time with you. Our students are enjoyed. Thank you once again. Hopefully in the future we will reconnect again. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Thank you, ma'am. So I would now request any other panelists present if they would also want to speak. Okay. So we would be ending this session. Thank you very much, Salman Zia sir, for your valuable time for today's session for this employability training program for Integral University. And it was a very wonderful and informative session. Like always, you have taken the program very efficiently, and it was a very learning experience for our students. And inshallah, they'll be benefiting through this lecture. I would now be doing a short prayer so that we can, end this session. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
I would also request the participants to keep visiting our website www.ampindia.org. You will be getting all the updates related to employment and the employability training programs which AMP runs regularly, as well as the online job fairs, job drives which we organize. So you can get benefit out of it. I would also be sharing a Telegram link of AMP India jobs with you all. So if you have installed Telegram on your mobile, you can visit our link AMP India jobs on Telegram, and you will get the updates related to the job opportunities all across India. Thank you, everyone. Good afternoon. It was wonderful to have you, and we expect similar programs in future, inshallah.